Hello, Assalamualaikum. Good afternoon, and hope you all are doing well. On behalf of Fast Mrs. The Center for Professional Training has arranged this session, empowering academia through skills development and industry experience today. For this purpose, I would like to welcome Mr. Hashim Murak, a representative from Spins Lab to talk about the topic. He's available online, and I would like to hand over the session to him. Thank you. Everyone, Assalamu alaikum. This is Hashim Barak. Please let me know if you can hear me loud and clear. Yes, you are loud and clear. Thank you. Okay. So, first of all, thank you, Dr. Hassan Jamil, for arranging this session. Dr. Hassan Jamil has been participating in one of our cloud SIGs, and with that, we have been talking after that session how we can take this opportunity to Fast Karachi. Dr. Hassan Jamil graciously took this leadership and set this session up. So, I would like to thank not just Dr. Hassan Jamil, but also Fast leadership at Karachi. We have a session here that in which we are going to share with you the opportunities that we have available for academia, including you, faculty, and students both. I'm joined here by Dr. Arshad Ali, who is the president of Spin Labs. Also, he is the former executive director of Higher Education Commission. Dr. Arshad Ali will be sharing with you an overview of SPS Spin Labs and the overall goals at the in the academic outreach program. Dr. Arshad, over to you, sir. Bismillah Rahman Rahim. First of all, thank you very much, all the organizers, Fast Management. We will be talking about a Spin Lab, which was created about 3 years before. But initially, we were focusing on blockchain, but later we expanded the activities. Our motto is to help prepare students for world job market. So actually, there are so many opportunities which exist not only in Pakistan but around the globe. But because we do not have the visibility or understanding, so that's why we are not able to benefit with as the whole world is benefiting. So our universities, there are close to 230 universities in Pakistan, and they are graduating about 960,000 in various disciplines. Out of that, 30,000 are IT related discipline graduates. And out of these 30,000, interaction all along. Earlier, I had been at NUST, then I was the vice chancellor at Textile University. So I've been very closely interacting with the IT industry. So IT industry has always been saying that out of all the people who graduate, only 2,500 to 2,000, 3,000 or 2,000 to 3,000 are actually employable. The remaining, we end up spending so much time, and by the time they learn something, they leave the company. So that's why they do not, they are not interested in hiring the graduates where the company need to spend time. So that is the reason why many of the graduates, they start thinking that they, after doing degree in IT, they should shift to business management or do CSS or do something else. And major problem is even the graduate with sociology, anthropology, philosophy, any discipline of social sciences, whether history, Islamic studies, they all have the opportunities. But the only important point is that we need to understand that. So this is a very recent news. You also might have heard that Pakistan has hit 100 million broadband users and 180 million cellular subscribers. So this number means a lot because 100 million subscriber means total population of Canada, Netherlands, Switzerland, Singapore, Sweden, Denmark, Ireland, Greece, Puerto Rico.
सो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे सिर्फ सब्सक्राइबर्स की तादाद के बराबर इतने सारे मुल्कों की टोटल पॉपुलेशन है। सो अगर इतने सारे मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज हैं और वो लोग तरक्की कर रहे हैं, तो वी नीड टू थिंक व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। अगर आप इजराइल को देखें कि सिर्फ 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 है, उन्होंने 5.3 बिलियन सिर्फ उनकी स्टार्टअप्स ने रेज किए हैं। जो उनकी स्टार्टअप्स की वैल्यूज हैं वो उसके अलावा है, और 10 बिलियन उन्होंने 2020 में किए थे। और अगर आप अंदाजा लगाएं कि हम $500 million के लिए अपने बहुत सारे अदारों को वर्ल्ड बैंक के सामने उनके घुटने टिकवा देते हैं के जो अगर यूथ सही तरीके से एम्पावर हो नॉलेज के हवाले से और अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, सो व्हाट दे कैन डू फॉर द कंट्री। सिक्योरिटी में ये कंपनीज हैं इजराइल की जिन्होंने फंडिंग रेज की, IoT में ये है, AI में ये है, क्लाउड में ये है, और पाकिस्तान का टोटल बजट 47 बिलियन है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि 2020 में इजराइल ने 10 बिलियन रेज किए थे, तो अभी फर्स्ट क्वार्टर में 5 बिलियन रेज किए हैं, तो अगर वो 15 बिलियन भी 2021 में कर लेते हैं, so that is close to 40% of the total budget of Pakistan. That is the power of technology. देखें कि ये जो बायजू है, ये इंडिया की स्टार्टअप है एजटेक के हवाले से, ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, और ये राइट साइड पे इसका फाउंडर है, जो कि इस वक्त तकरीबन कोई 35-36 ईयर्स का है, और ये तकरीबन 12 साल पहले इसने कंपनी रेज की थी, और ये मैकेनिकल इंजीनियर है बुनियादी तौर पे, इसको IT नहीं आती थी। इसने IT का एक कोर्स किया जिसकी वजह से ये अमेरिका चला गया, लेकिन वहां से जब ये छुट्टी वापस आया तो जो लोग इससे ट्यूशन पढ़ते थे उन्होंने फिर कहा कि यार तुम हमें ट्यूशन पढ़ा दिया करो। सो देन ही रियलाइज कि यार इस ट्यूशन को मैं अगर ऑनलाइन कर दूं तो इट कैन हैव इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज, एंड देन ही स्टार्टेड दिस बायजू। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल फाइंड आउट। अभी इन्होंने $2.2 बिलियन रेज किया और इनकी टोटल वैल्यू 12 बिलियन के हवाले से है। सो आप अंदाजा लगाएं कि जितने भी इस वक्त यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं और स्टूडेंट्स हैं, सो लुक एट दी जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपकी मेंटल पावर है, व्हाट रोल इट कैन प्ले एज फार एज आवर सोसाइटी इज कंसर्न। और ये चंद दिन पहले USA की ये एक फिर अगेन एजटेक स्टार्टअप है न्यूज़ेला, इन्होंने 100 मिलियन किया, और इनकी ये 3 साल हुए हैं इस स्टार्टअप को, और इनकी इस वक्त वैल्यू जो है $1 बिलियन, जिसको यूनिकॉर्न का भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पहुंच गई है जस्ट 3 years। एंड लुक एट द एज ऑफ दीज पीपल। ये तो मैं स्टार्टअप के हवाले से बात कर रहा था। अब अगर जॉब मार्केट के हवाले से देखें, AI जॉब्स 50 लाख के करीब दुनिया में 2022 के करीब होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में 14 लाख, साइबर सिक्योरिटी में 85 लाख, IoT में 45 लाख। बेवकूफी होगा जो इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा नहीं उठा रहा होगा। और पेंडेमिक की वजह से अब ये हो गया हुआ है कि पीपल आर नॉट कंसर्न कि आप दुनिया में कहाँ बैठे हुए हैं। इन सारे जॉब से आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी फायदा उठा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल स्किल प्रोग्राम कहते हैं, और इस प्रोग्राम के तहत वो 25 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ लोगों को ट्रेन करेंगे। सो लुक एट द amount of opportunity and the canvas of opportunity which exist around us. So Spin Lab की विजन ये है कि टू प्रमोट हाई क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग फॉर फैकल्टी,
और जब फैकल्टी को स्किल्स का पता होगा कि कौन सी स्किल्स मार्केट की जरूरत की हैं और वो कैसे हासिल करनी, और ये इसमें से enormous amount of resources are freely available. और फिर एक्चुअली ये जो स्पिन लैब है ये SPS एक कंपनी है यूएस में, उनका ब्रेन चाइल्ड है, एंड I have been working with SPS since I think 2008 or 9. उस वक्त से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, और मैंने नस्ट में इनका एक सेंटर एस्टेब्लिश किया था IBM की ट्रेनिंग के हवाले से। और एक जमाना ये था कि जितने हमारे ग्रेजुएट होते थे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के में शामिल होके वो सारे के सारे ग्रेजुएट होने से पहले उनको IBM हायर कर लेता था, क्योंकि they were ready to use those skills. तो इस हवाले से फैकल्टी को ये पाथवेज पता होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को पता होंगे तो वो एक स्टूडेंट का फायदा होगा, लेकिन अगर फैकल्टी को पता होंगे तो वो एक कंटिन्यूसली उनके पास क्लासेस आती रहती हैं, सो दे विल बी एबल टू शेयर इट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. सो दैट इज द रीजन टू engage faculty. Create a pool of competent resources जो कि SPS और स्पिन लैब के अपने प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे भी यूज हो सकते हैं, और उसके अलावा हम उनको ये भी गाइड करेंगे कि कंपनीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और जो कंपनीज बिल्ड अगर करते हैं तो जो SPS है या स्पिन लैब है, इनका अपना एक कस्टमर बेस है, इनकी अपनी एक मार्केट है. सो देन वी विल आल्सो गाइड how to connect with the customers and get the market access. अगर आप देखें ये एक जहाज की तस्वीर है, और दुनिया का कोई एक अदारा जहाज नहीं बनाता है, ये डिफरेंट कंपनीज हैं, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है. सो दे मेक डिफरेंट कंपोनेंट्स, और जो बोइंग है वो इन कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक जहाज बना देता है. सो अब टेक्नोलॉजी के हवाले से हर किस्म के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. ये जो बायजू मैंने इंडिया की बात की, दे आर यूजिंग एनालिटिक्स एंड जो कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म. इसी तरीके से मैंने जो न्यूज़ीला की बात की वो भी इसी तरीके से. ये नहीं है कि उन्होंने कोई नई चीज ईजाद कर दी है, वो एग्जिस्टिंग टूल्स को मिक्स एंड मैच करके वो इन कंपनीज को बिल्ड कर रहे हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज को बिल्ड कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं. हमारे मुल्क में चूंकि अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से हम लोग इस सारी अपॉर्चुनिटी से बेखबर भी हैं, और हम नुकसान भी उठा रहे हैं. इसमें जो असल प्रॉब्लम आता है वो क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम आता है, और वो जो क्रिएटिविटी है जो साइकोलॉजिकल स्टडीज शो करती हैं वो जेनेटिक नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. हम ये समझते हैं कि जो लोग पैदाइशी तौर पे इंटेलिजेंट होते हैं सिर्फ वो या क्रिएटिव होते हैं वही कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. ये जो क्रिएटिविटी है ये माहौल से बनती है, ये प्रैक्टिस से बनती है, ये सोचने से बनती है. सो जो स्टीव जॉब है, ही वाज नॉट अ कंप्यूटर साइंटिस्ट. उसने तो कंप्यूटर साइंस की कभी डिग्री भी नहीं ली थी, लेकिन उसने ड्राइंग के हवाले से, स्केचेस के हवाले से एक डिफरेंट तरीके से सोचने की सलाहियत पैदा कर ली थी. तो वो हर चीज को क्वेश्चन करता था. सो क्रिएटिविटी स्किल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है टू कनेक्ट सीमिंगली अनरिलेटेड आइडिया. अगर आप ये सिंपल सी एग्जांपल देखें कि किसी जमाने में लोग ऊंची जगह से नीचे आते होंगे तो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते होंगे, तो किसी ने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे खड़े हो और वो उसी पे खड़े खड़े नीचे आ जाएं. सो दैट इज हाउ दिस एलिवेटर वाज इन्वेंटेड. सो इट वाज सीमिंगली अनरिलेटेड बट somebody associated it with the height and the elevation. So इसलिए ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, लेटरल थिंकिंग है, राइट ब्रेन थिंकिंग है, ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और जो इनोवेटिव लोग होते हैं वो 50% से भी ज्यादा टाइम
क्रिएटिव थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग और राइट ब्रेन थिंकिंग पे को डेवलप करने में लगाते हैं। और यूट्यूब पे अगर आप जाएं तो इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोस भी मिलेंगी कि ये स्किल्स कैसे डेवलप की जाती हैं। सो अगेन ये मैंने आपसे शेयर किया कि हम चाहते हैं कि फैकल्टी और स्टूडेंट्स को करें, और इसमें जो क्रिएटिविटी स्किल्स में जो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला है कि आप स्किल्स को सीखें, क्योंकि जब को आपको कोई आपके पास टूल्स ही नहीं होंगे तो आपको आइडिया भी नहीं आएगा कि मैं आगे करूं क्या। सो टूल्स और टेक्नोलॉजी को सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम ले लें, IBM का ले लें, किसी और प्लेटफॉर्म का ले लें, इतने सारे कोर्सेज। आई विल रिक्वेस्ट हाशिम टू शेयर विद यू कि किस किस्म के प्रोग्राम्स फ्रीली अवेलेबल हैं। और फिर जो SPS है, इट विल हेल्प you to get those certification, ताकि इंटरनेशनली आप रिकॉग्नाइज हो जाएं कि आपको ये स्किल्स आती हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिसिंग, और फिर प्रैक्टिसिंग के बाद एक्सपेरिमेंटिंग, जो कि लाइव प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन आ जाती है। और मेरी SPS के CEO हैं हशमत, उनसे बात हुई है। ही हैज एग्रीड कि हम स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स में हम एक शैडोइंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें जो एक्सपर्ट हैं वो अपना काम कर रहे हो, लेकिन साथ वो स्टूडेंट्स को भी बता रहे हो कि इस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जब ये पहले तीनों स्टेप कवर होंगे, उससे आपका फिर कॉन्फिडेंस होगा कि आप कोई नई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, नई कंपनी भी बना सकते हैं, एंड देन यू विल बी फ्री टू स्विम इन द अपॉर्चुनिटीज जो दुनिया में अवेलेबल है। सो ये SPS इज इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग सिक्योर इंडस्ट्री सॉल्यूशन, लेवरेजिंग IoT, AI और क्लाउड। आप देखेंगे ये 4 एरिया में इनका फोकस है। एक सिक्योरिटी है, एक IoT, AI और क्लाउड, और इन चारों से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं दे विल मेक अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। और इसमें हमने कोशिश की है कि हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को इसकी अपॉर्चुनिटीज ना दें, बल्कि जो भी इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से, फैकल्टी और स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे जो 2 कॉलम है, ये सारी SPS ने जो प्रोडक्ट्स बिल्ड किए हैं कमर्शियल, कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं कस्टमर्स के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्होंने ओपनली लॉन्च किए हैं, वो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। All these products on the left hand side have been built by using the platforms on the right hand side. अगर आप देखें इसमें HP, IBM, Keysight, Microsoft, Red Hat, so हर किस्म का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, AT&T, Epson, Fortinet, so और इन प्लेटफॉर्म की अगर आप सर्टिफिकेशंस करेंगे, इनको समझेंगे, बल्कि मैंने तो नस्ट में ये भी किया था कि अगर हम लेट से नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, तो उस कोर्स का हिस्सा हम कुछ सर्टिफिकेशन को भी बना देते थे। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सिक्योरिटी रिलेटेड सर्टिफिकेशन, ताकि बाय द टाइम वो स्टूडेंट उस कोर्स को कंप्लीट करता है, ही हैज 1 or 2 or 3 सर्टिफिकेशन इन हिज और हर हैंड, ताकि वो इंडस्ट्री को एक सर्टिफाइड कॉम्पिटेंसी का प्रूव कर सके एंड टू गेट द जॉब और टू स्टार्ट working. So this is the kind of opportunities which I will request Hashim to share with you all. With that, I thank you very much for your understanding and interest. और अगर इसमें कोई question होगा तो we will be available at the end of this session ताकि हम आपके questions के जवाब दे सकें. Over to Hashim. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone, this is Hashim Barak. I look after the innovation and entrepreneurship program at SPS under the umbrella of Spin Labs. Spin Labs is basically innovation labs of SPS.
So as the name goes, वो software productivity strategies. तो we have SP, innovation labs, software productivity innovation labs. आप लोगों के साथ flyer भी share हुआ होगा. The only reason we wanted to set up this session with you was to share some of the opportunities जो कि हम बाकी universities के साथ बात कर रहे हैं, उनको introduce कर रहे हैं, and they are leveraging those opportunities. And when we were discussing with Dr. Hassan Jamil, तो we thought, why not we share this with Fast Karachi as well. There are 4 items that I wanted to go through in this session. First of all, something about ourselves. Dr. Saab ne aapko ek high level overview de diya. I will take it a step deeper and explain to you what we are doing. This is important because it will help you understand that we are a company that is based out of US and we have office in Pakistan. And the amazing thing, जो पाकिस्तान में बैठे हुए engineers, computer scientists और दूसरे लोग कर रहे हैं, and they are delivering projects across the globe. After that, I'll share with you कि आप कैसे उन opportunities को avail कर सकते हैं जो हमारे पास है. And this will be followed up with the more operational aspect कि specifically आपने कहाँ पे जाके click करना है, how and at what place you can find that information specifically. And then we can close this session with a call to action. उसके अंदर some of the specific things which are right now live and open, वो मैं आपके साथ share करूँगा. I'll begin by sharing with you this slide, which is essentially जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, building secure industry solution. This is actual slide जो कि हमने internally company के अंदर we have these annual kickoffs जिसके अंदर तमाम company मिलकर बैठते हैं and we decide and plan on the agenda for the next year. So this is the slide from the session that we had for the year 2021 at the beginning of this year. SPS has been in business for 28 years now. We are based out of Rockville, just outside of DC in Maryland. When we started, in early 90s, so we were focusing around cybersecurity. Cybersecurity is it used to be our bread and butter. It is also, to a large extent, still our bread and butter. Uske baad, we established back office, sort of the back office operations in Pakistan in early 2000. But right now, as we head into 2021, our more than 80% workforce is based out of Pakistan, and only 20% is out there in the US. पहले ये इसके उल्ट होता था, वहाँ पे we had the 80% and 20% was here in PK. The reason I'm telling this to you is because we feel the opportunity that we have in Pakistan is so tremendous that it would be a shame not to take leverage of that opportunity. And in the process, what we'll be doing is we'll not just be achieving our own business goals as a commercial enterprise, but we will be helping this nation of ours, jahan se, we started off at the beginning. So जब हमने start किया था, तो we used to work in these cyber security domain, जो कि 80s में एक cyber security अलग थी, 90s में अलग थी. जैसे शुरू में firewall पे ज़्यादा focus होता था, फिर वो digital certificates की तरफ बात आ गई. And फिर early 2000 में cyber security was more on web focused. But this decade of 2020 and 2030 is all about building industry solutions. You cannot be a technology company and say कि यार मैं software develop कर रहा हूँ, या मैं आपको सर्वर लगा के दे सकता हूँ, या चूंकि अब सब कुछ क्लाउड पे चला गया तो मैं आपको क्लाउड पे प्रोविजन करके दे सकता हूँ, और मे बी मैं आपकी बग फिक्सिंग कर सकता हूँ, या मैं आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकता हूँ. We believe this decade is to build secure industry solutions. The reason this is important is कि हम सब अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो everything is interconnected. आप इस वक्त एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं. There are so many electronic devices in there. All of them are talking to each other. मैं आज इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. And it has become such a common norm now, this all remote aspect. ये सब क्यों हो रहा है? इसके अंदर हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्लाउड भी इन्वॉल्व है. जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग बैक टू द गूगल क्लाउड, और वहां से आपके पास जा रही. गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर दुनिया में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं. उन डेटा सेंटर्स की कोई सिक्योरिटी मैनेज कर रहा है ताकि मेरी जो लाइव फीड है आपके तक बराह रास्त आ सके. इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो गूगल क्लाउड ये गूगल मीट ऑप्शन देता है कैप्शंस की. व्हाट इज दैट? दैट इज स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू अचीव होती है. इसके पीछे डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो यूज होते हैं. तो अगर आपने एक आना है इवन टू द लेवल ऑफ एक सिंपल कम्युनिकेशन टूल लाइक गूगल मीट, you need to know natural language processing, you need to know video processing, you need to have an infrastructure place, you need to make it secure ताकि आपके customers का confidence हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ that is safe and secure, and nobody who is not supposed to be here
वो बीच में जंप इन ना करे. So that's what our goal for this decade is also. We want to build those solutions that are not just secure, but वो AI और cloud की technologies को भी leverage कर रहे हैं. You cannot be a simple software developer. You have to look at the bigger picture, and then you need to have those basic components in place to deliver the bigger solution. अब आपके साथ ये शेयर करने का मकसद ये था कि एक तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको हाईलाइट करना है, एंड दिस इज द वे SPS हैज बीन स्ट्रक्चर्ड फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स. तो I will take now a step deeper as to who we are. So जैसे मैंने आपको बताया, we have a, just give me a second. Okay. So we have a AI and dev team. ये जो AI और dev team है, that is basically the team that not just writes code, not just tests it, and not just deploys it. It also does the analytics on all that solutions. आजकल कस्टमर आपसे ये नहीं कहता कि यार मुझे ये मोबाइल एप्लीकेशन बना दो. They are more interested in के उस मोबाइल एप्लीकेशन से जो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसके नतीजे में जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही होगी, उस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे लेवरेज कर सकता हूं. सो वी डोंट रियली कॉल आवरसेल्व्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बिकॉज दैट जस्ट अ मींस टू एन एंड नाउअडेज. आजकल आपने फोकस करना है ऑन द बिगर एस्पेक्ट्स दैट द वर्ल्ड नीड्स टू फोकस ऑन, व्हिच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हिच इज डेटा एनालिटिक्स. एंड आई विल स्पीक टू दिस इन अ लिटिल मोर. इस डेवलपमेंट टीम को सपोर्ट करती है एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टीम जो कि इन एप्लीकेशंस को क्लाउड पे डिप्लॉय करती है. यू हैव टू प्रोविजन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेयर मेटल सर्वर्स और मे बी वर्चुअल सर्वर्स और मे बी VMware बेस्ड cloud infrastructure. Similarly, we have the security team. Security, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले ये होता था कि अच्छा चलें, अब तो जब एप्लीकेशन बन जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी, एंड देन विल स्टार्ट लुकिंग एट द सिक्योरिटी. फॉर एग्जांपल, अगर वेब एप्लीकेशन है, मैंने वेबसाइट को मॉनिटर करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ incidences that are being generated, और मैं फिर उन incidences को monitor करूंगा, and I'll try to classify them in whether they are a offense or not an offense, और फिर मैं उसकी further investigation करूंगा. But right now security begins with your application code level. अगर आपका कोड ही सिक्योर नहीं है, तो ये जो पेरिफेरी की चीजें हैं, they do not really ensure कि you are secure. In the recent years we have seen so many security breaches, so many losses. पाकिस्तान में मिजान बैंक और दूसरे कुछ institutions की हमारी एग्जांपल है. US में there have been big data breaches. In Eastern Europe there has been so many data security breaches. यहाँ तक कि जो उनकी SCADA based utility companies हैं, उनके systems को भी बंद कर दिया गया. हमने ईरान का स्टक्सनेस का देखा था कि वो कैसे एक USB के थ्रू they were able to bring down the whole of their plant. तो we have this security team. ये security team, अच्छा, जब AI टीम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करके एक सिक्योर सोल्यूशन दे देती है आफ्टर टेस्टिंग इट, तो इस सारी नॉलेज को, बिकॉज ये आसान काम नहीं है, दीज आर यूनिवर्सल इन देमसेल्व्स, इनको फिर एक इनेबलमेंट टीम चाहिए होती है जो कि इनको कस्टमर को समझाती है. वी हैव टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू द कस्टमर. अब ये इनेबलमेंट भी एक साइंस है. यहाँ पे आपने कस्टमर के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, उस डॉक्यूमेंटेशन पे उनकी इनिशियल ऑनबोर्डिंग करनी है, विच मींस यू हैव टू कंडक्ट दोस ट्रेनिंग्स फॉर द कस्टमर, जहाँ पे आप नॉलेज ट्रांसफर करके एंड यूजर एक्सेप्ट टेस्टिंग करके आप कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं. सो वी हैव दिस टीम जो कि ये कोर्सेज डेवलप करती है एंड दैट इट डिलीवर्स टू द कस्टमर्स. एंड वांस द सिस्टम इन प्लेस, तो फिर यहाँ पे आपके पास ऑपरेशंस और सपोर्ट टीम आई थी जो कि फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिस एडमिन्स का रोल होता है. आपकी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का LMS चल रहा होगा, उस LMS को कुछ लोगों ने डेवलप किया होगा, फिर उस LMS को आजकल कुछ लोग उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स कर रहे होते होंगे, एंड देयर वुड बी अ टीम जो कि उसको मैनेज या एडमिनिस्टर कर रही होती है. कोई बग्स आ जाएंगे तो उनको फिक्स करेगी. तो दैट्स अनदर साइंस इन इटसेल्फ कि एक बने हुए सॉफ्टवेयर को मैनेज करना. आपको कोई LMS में मसला आएगा तो आप एक हेल्प डेस्क पे क्यूरी भेजेंगे कि यार मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, मैं क्लासरूम में नहीं लॉगिन कर पा रहा, मैं अपने कोर्सेज नहीं देख पा रहा, मैं एनरोल नहीं कर पा रहा नेक्स्ट सेमेस्टर में. So there is a help desk team that does that. So the reason I'm telling this to you is this is the way an industry solution is being built nowadays. And if you really want to excel in that, you really have to know all these bits and pieces. And we have built those foundations in our company. But we are a medium-sized company and we cannot claim to be the best in all of these because हम individually ये कर नहीं सकते. And wouldn't it be nice that we work with somebody, an industry, which has that source?
जो कि एकेडमिया की सूरत में हमारे सामने है, जहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं. यू नो ट्रेडिशनली भी तो हम एक स्टूडेंट को और एक फैकल्टी को हायर कर सकते हैं. तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का मसला ये है कि IMF के 6 बिलियन के लिए हम लोग रोते फिरते हैं. सिर्फ एक करीम की जो एग्जिट था दैट वाज वर्थ $3 बिलियन, और इधर पूरा मुल्क उसे 6 बिलियन के पीछे पड़ा हो. तो अगर हमारे पास यूनिकॉर्न्स होंगे तो जस्ट इमेजिन द प्रॉस्पेरिटी एंड द वेल्थ क्रिएशन दैट वी कैन हैव इन आवर कंट्री. So these are some of the customers, and I'll share more on these customers as we go along in this PowerPoint. These are some of the technologies that we work in. Now, this might give you an idea कि industry में क्या चल रहा है, especially for the students. These are some of the technology stacks that we use in web, in database, in cloud. We have these different providers, and similarly in mobile, we have Android, iOS, and other platforms. Now I come back to the four core competencies, जिसके अंदर there is a tremendous opportunity. We have one vertical in the form of artificial intelligence and Internet of Things. Then we have, of course, cloud, practice within SPS, and this is followed by cybersecurity and events and learning. Artificial intelligence and Internet of Things. The reason this is important is because अगर आप सोचें ना तो artificial intelligence is really data science. Artificial intelligence का जो term है, it was coined to explain to a layman कि data science आप फायदा कैसे दे सकती है. It is some form of an artificial intelligence mechanism to complement human intelligence. But if you look really below the surface, it's all about data science. अब data science के अंदर अगर आप अपने colleagues और अपने projects पे देखें तो most of the time we are focusing on कि मैं Python सीख लूं या R सीख लूं और मैं code लिख लूं या मैं Excel पे कुछ analytics कर लूं. बट इफ यू लुक एट कस्टमर प्रॉब्लम्स, कस्टमर प्रोजेक्ट्स, तो सबसे ज्यादा टाइम आपको पता है किस पे लगता है? ये लैंग्वेज लिखने पे नहीं लगता. जो इससे पहले की स्टेजेस है, फिर सबसे पहले तो आपने डेटा को कलेक्ट करना है, फिर आपने उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ताकि इट बिकम्स रेडी फॉर द एनालिसिस स्टेज. इन दो स्टेजेस पे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा होता है कस्टमर प्रोजेक्ट्स में, एंड वी डू नॉट हैव द स्किल्स इन द मार्केट. जो कि देयर आर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस अवेलेबल जो कि कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प करती है. उसके बाद एनालिसिस की फेज आती है. and I'll exit out of this this slideshow for a minute, और मैं आपको दिखाता हूं कि जो AI ladder, जो कि the way you look at a particular AI problem. If you look at your screen right now, if you want to excel in artificial intelligence, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए information architecture. Information architecture क्या है? That collection, organization, and analysis of data. Without this, you cannot really, confidently say कि आप industry solutions build कर रहे हैं. You can create those bits and pieces, but really जो एक AI का गोल होता है कि वो insights मिले जिनको यूज करके आप अपने business operations को एफिशिएंट कर सकें, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है. ये 4 स्टेजेस होती हैं. वेयर इन द फर्स्ट स्टेज यू कलेक्ट द डेटा, इन द सेकंड स्टेज you organize that and make it analysis ready. Then we go into analysis phase, जहां पे आप actual वो algorithms, वो rules deploy करते हैं जिसके through you find those insights, and then you infuse those back into the operations. अब जो collect की phase है, where I'm going with this is मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में. अब ये जो कलेक्ट की फेज होती है, इसके अंदर डेटा इंजीनियर्स का रोल आता है. डेटा इंजीनियर्स इज अ रोल दैट द कंपनीज हैव, जो कि इस डेटा की कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं. दे आर फैसिलिटेटेड बाय डेटा साइंटिस्ट. एट अ सर्टेन पॉइंट देयर इज अ हैंडओवर from data engineer to a data scientist. Data scientist फिर उसकी जो last stages of organization है, उन पे काम करते हुए they start to analyze the data. or they write those algorithms, they write those lines of code जो कि आपको help करती हैं to make sense of the data, sort of get a method to the madness. और जब data scientist वो काम कर लेता है तो फिर एक analyst का काम होता है कि वो in outputs को वापस operations के अंदर deploy करें. Now, why I'm sharing this with you is because each of these roles require a particular skill set. वो जो डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे थे कि मैं आपको उन opportunities के बारे में, उन courses के बारे में बताऊं, तो you cannot become a data scientist या data engineer या risk analyst without knowing the basic pieces. And I'll show that to you in a minute.
Now coming back to this slide deck that I was going through, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि which we are doing sitting in Pakistan for customers across the globe. आप लोग जो AI का optional subjects ले रहे हैं, especially those in the BS या जिन्होंने स्पेशलाइजेशन इसमें करनी है मास्टर्स के अंदर, predictive analytics, prescriptive analytics, descriptive analytics, these are big things nowadays. So we are working in those domains. So these are some of the applications that we have developed. आपने employee, अगर आपकी workforce बहुत ज़्यादा है, for example you are a पावर कंपनी और आपकी जो एम्प्लॉइज हैं वो यूटिलिटी लाइंस के मेंटेनेंस करते हैं, देयर आउट देयर इन होल पाकिस्तान, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, बट हाउ यू एज अ मैनेजर नो कि वो कहाँ पे हैं? तो वी हैव बिल्ड दिस सोल्यूशन जहाँ पे इमेज एनालिटिक्स, इमेज रिकग्निशन के थ्रू, जियो फेंसिंग के थ्रू वी आर प्रोवाइडिंग दोस सर्विसेज, एंड इन सब के पीछे एआई यूज हो रही है. सिमिलरली ये प्रोडक्टिविटी एप्स हैं जो हमने बिल्ड की हैं. मैं आई एम डिलिबरेटली नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज वी आर we have a limited time here. But I just want to touch upon all of these various aspects in technology जो कि आपके लिए बहुत relevant है in the year of 2021 and this whole decade. Natural language processing है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था. तो for example we had this company जो कि अमेरिका में, जैसे you have UPS, FedEx, there's a company called Leadership, they do the last mile deliveries. ये था कि उनको क्रिसमस के पास इतनी ज्यादा कॉल्स आती थी, दे सिंपली डिड नॉट हैव द बैंडविड्थ कि वो उन कस्टमर कॉल्स को हैंडल करें. सो दे आस्क्ड अस एंड दे सेड कि इफ वी कैन बिल्ड अ चैट बॉट जो कस्टमर्स के उन प्रॉब्लम्स को हल करे. तो एनएलपी के अंदर फिर यू यूज दीज IBM वाटसन APIs जिनको यूज करके आप ये स्पीच टू टेक्स्ट टू वॉइस, इस किस्म के फीचर्स बनाते हैं. These are some of the chatbots जो हमने different companies के लिए बनाए. And similarly ये अब imagine करें कि innovations कहाँ पे हो रही हैं. आज अगर मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ट्रेडिशनल रोल ये है कि पहले मैं वो जॉब ढूंढूंगा, फिर मैं उस जॉब को ढूंढने के बाद अपनी इंटरेस्ट की मैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, देन आई गो एंड फाइंड आउट कि यार अच्छा मैंने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, फिर मैं वेट करूंगा कि मुझे कोई HR से कॉल आती है कि नहीं आती, देन आई हैव दोज इंटरव्यूज. We built this solution for IBM. This was the proof of concept जिसके अंदर आपकी रेज्यूमे को लेकर आप सेंटिमेंटल और पर्सनैलिटी एनालिसिस कर सकते हैं और आप बता सकते हैं विद अ गुड ऐसा है कि जो आजकल के जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगे, आप जॉब लेने जाएंगे, तो probably in good companies these systems are already would be in production. एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में जाएंगे तभी भी सारा एनालिसिस ओके HR वाले के पास जा रहा होगा, एंड दे विल बी स्क्रीनिंग यू आउट बेस्ड ऑन दीज एनालिटिक्स. So in other words, this is a huge business opportunity for us. This is a huge opportunity for you as the student, how these systems work, and then tap those opportunities that are available. Excuse me, image processing is another field जिसमें हमने काम किया है, face detection, classification, recognition वगैरह के ऊपर. IoT based application. Now IoT in itself is nothing. अगर मैं आपको बताऊं कि I give this example to everyone कि couple of decades ago, so these are some of the IoT applications, and so I think I'll have to move really fast on these ones. So ये कुछ क्लाउड की अपॉर्चुनिटीज हैं जो है क्लाउड में कैसे डेवलपमेंट डिजाइन होती है, फिर साइबर सिक्योरिटी के हैं. By the way, you can always reach out to me after this session. I'll share my email address. You can always reach out to Dr. Hassan Jameel if you have any questions or queries. ये इवेंट्स का मैं थोड़ा सा अब where do you fit in? इस पे Dr. Hassan, if you give me a few more minutes, so I'll speak to this a bit. Spin Labs is the innovation labs of SPS जो डॉक्टर साहब बता रहे थे. तो these are some of the initiatives जो हमने पहले किए, स्मार्ट हैकाथॉन्स की, वर्कशॉप्स की, बूट कैंप्स की, POCs की, प्रोटोटाइप्स बनाए वगैरह वगैरह. आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि you have the potential to learn new things. You have the potential to earn money while you are in university, especially for the faculty. These are as available opportunities. So you will be working in universities, but if you have the interest and the time, you can tap those project outsourcing opportunities. There are entrepreneurship opportunities. आजकल FIPs जो अच्छी universities हैं वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन पे नहीं करने कहती, वो कहती है come up with a business idea, come up with a business use case. And FIP अगर आप ऐसे ही किसी ट्रिवियल किस्म के यूज केस में उस अपॉर्चुनिटी को जाया कर देंगे तो यू आर रियली लूजिंग entrepreneurship possibility in that FIP. So we help
वी हेल्प एकेडेमिया कि किस तरह अपने FIPs को वो कंपनीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो देयर इज अ होल थॉट प्रोसेस दैट गोज इनटू इट. देयर इज अ मेथोडोलॉजी जो बिजनेस मॉडल की मेथोडोलॉजी है, फिर स्लाइसिंग पाई की मेथोडोलॉजी है. एक बड़ा मसला ये होता है कि दो फ्रेंड्स मिलके FIP बनाते हैं एंड आफ्टर दैट वन डिसाइड्स कि यार मैं तो मास्टर्स के लिए PhD के लिए जा रहा हूँ, और वो जो आइडिया होता है विच इज अ रियली शाइनिंग स्टार वो वहीं पे रह जाता है. तो उसके लिए स्लाइसिंग पाई मेथोडोलॉजी यूज होती है. वी डू दैट विद द स्टार्टअप्स. Then there are professional development opportunities. जैसे आज मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ. We have these events happening every week on each of these technology areas. We have 4 of these: artificial intelligence, IoT, cloud, and cyber security. तो ये हमारी वेबसाइट पे मौजूद है. आप उन सेशंस को ज्वाइन करके, अगर आपने अभी तक अपना इंटरेस्ट फाइनलाइज नहीं किया, तो आप उन सेशंस के अंदर ज्वाइन करके एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल से सीख सकते हैं कि AI में क्या हो रहा है, IoT में क्या हो रहा है, क्लाउड में क्या हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में क्या हो रहा है. And then we have these innovation opportunities जहां पे we share some of the innovative projects that we have. Uh, the reason this is important कि technology जितनी rapidly change हो रही है ना, entry to threshold is also very small. This is the key point here that we are trying to make. अगर आपने टेक्नोलॉजी के साथ कीप अप करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी की एंट्री की थ्रेशोल्ड ही बहुत स्मॉल है. व्हाट दैट मींस इज कि इट इज नॉट रियली डिफिकल्ट टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी. कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आपने वीडियो देखनी है, बैजेस लेने हैं, एंड पे सर्टिफिकेशन करनी है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव दैट क्रेडेंशियल जिसके थ्रू आपको जॉब्स मिल सकती हैं. So these were some of the things. ये academic initiative program है, Dr. Hassan is aware of it, और ये मैं आपके साथ इसमें हम बाद में एक dedicated session भी रख सकते हैं. And then these are the 2 slides that I want to take a few minutes to speak on. Faculty के लिए क्या opportunity है? The way you work in this program is you find the area of your competency, जो 4 मैंने आपको बताए. You attend the training sessions जो डॉक्टर साहब ने आपके साथ जिक्र किया, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. You get certifications in those technology areas. फिर वी हैव दोज प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज जो कि कोर्सेज की फॉर्म में भी हो सकती हैं और कस्टमर प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में भी हो सकती है. इन द प्रोसेस यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एज वेल. You can participate in these 6 sessions. You can provide consulting services to our customers, and then most importantly at the end you have the potential to launch companies. Similarly, students के केस में आप affiliate बन सकते हैं. We that can lead to an intern or a full-time position, or you can become our ambassador. ये हम कुछ years में announce कर रहे होंगे. We have these virtual courses just like we had for faculty. You can earn badges, you can earn certifications. This is a really key opportunity. Imagine करें आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं and you're already working with customers by shadowing SPS engineers. तो जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो you not just have the technical skills, बल्कि most of the time engineers का मसला ये होता है कि उनके पास वो कस्टमर से बात कैसे करनी है, ईमेल कैसे भेजनी है, प्रेजेंट कैसे करना है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करना है, उन रिक्वायरमेंट्स को इंटरनली टीम में टास्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने. देयर इज सो मच टू द नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट. तो अगर आपके पास वो यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी हो तो हाउ अमेजिंग वुड दैट बी. So this is how the traditional roadmap. First up, you have to learn, because unless you know the skills, there's really no point in going further. So you have to go through those courses and become skilled in a particular technology area. Uske baad you start to gather some recognition. We'll help you do that, and then we help you sort of create a brand of your own. आजकल social media का दौर है. Unless you have a brand, मेरे से जो भी बात करता है, आई गो आउट ऑन गूगल एंड आई सर्च दैट पर्सन्स नेम एंड मैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ता हूं, एंड सो डज एवरीबॉडी. सो अनलेस यू हैव अ सोशल प्रेजेंस, you cannot really convince customers, you cannot really convince your peers, and that leads to projects, and projects leads to wealth creation. Yeah, I'm going a bit fast, but we can in the interest of time. अच्छा, इसमें one thing more कि आपके पास एक टेक्निकल ट्रैक भी है, डिजिटल और नॉन टेक्निकल ट्रैक भी है. बिजनेस साइड का कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, तो they can even start from an intern and end up becoming VPs or even presidents. It's just not limited to the technical aspects or the technical roles. जिसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो बायजू के प्रेसिडेंट करता है. तो opportunity is available irrespective of whether you have a technical or a non-technical background. इसके अंदर we have these product leader track. आप एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप IBM के वाटसन के लीडर बन सकते हैं, आप IBM के पार्टनर लीडर, यानी पार्टनर लीडर का मतलब ये है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन स्टार्ट लुकिंग आफ्टर होल IBM पोर्टफोलियो. एक कस्टमर के आप लीडर बन सकते हैं. कस्टमर्स आर सो बिग, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर आउट देयर कि हमारे पास एक कस्टमर है, वो लकड़ हारे हैं, लेकिन इतने बड़े हैं कि उनके 35,000 एम्प्लॉई हैं
तो आप इमेजिन करें उस कस्टमर को हैंडल करने के लिए वी नीड सो मेनी रिसोर्सेज. तो यू कैन टेक द कस्टमर लीडरशिप ट्रैक, यू कैन बिकम एन इंडस्ट्री लीडर. फॉर एग्जांपल यू आर सो गुड इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, तो आप फिनटेक की लीडरशिप ट्रैक ले सकते हैं. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दीज आर मोर लाइक एम्प्लॉयमेंट ट्रैक्स, बट अगर आप इंटरेस्ट हैं अपने ओन इनिशिएटिव में, तो वी कैन हेल्प यू डू दैट एंड यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर लीडर. ये थोड़ा सा मैंने इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि इस सारे प्रोसेस को, दिस इज द यूनिवर्स इन इटसेल्फ, वी हैव द सिस्टम इन प्लेस जिसके थ्रू हम इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं. वी हैव दिस BMS सोल्यूशन जिसके अंदर आप और हम मिलके इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे. अनलेस यू कैन डॉक्यूमेंट इट, बाकी वर्बली काम फिर मुश्किल से ही कंप्लीट होते हैं. तो वी हैव द सिस्टम, द सपोर्टिंग मैकेनिज्म जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं. नाउ this is really the most key part of our conversation today. And Dr. Sir, I'll take a few more minutes just. So this is our website, spsnet.com /SpinLabs. You can always visit our website. This is a living organism sort of, so we develop this website as we go along. इस वेबसाइट के ऊपर आपको इमीडिएटली जो 4 चीजें जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है 4 ट्रैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इंगेज करना है SpinLabs के साथ एंड यू आर इंटरेस्टेड इन getting those opportunities, those project opportunities, learning opportunities. First of all, I would like कि आप ये technology tracks explore करें. There are 4 technology tracks that we work in: AI, cloud, IoT, and cyber security. अगर आप किसी भी track पे click करेंगे, तो you will find some earning opportunities, learning opportunities, and some professional development opportunities. ये जो home पे आपको नजर आ रही है. So this is the schedule of special interest group sessions. Different tracks के अंदर different meetups हैं. आज शाम को 5 बजे we are meeting about a dozen different universities on establishing a cyber security program at universities. तो बल्कि if you are interested, तो मैं I'll share that with Dr. Hassan Jameel and probably he can forward it to you. उसमें हम यूनिवर्सिटीज को बता रहे हैं कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम कैसे इनिशिएट करना है. आपने अगर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाना है तो यूनिवर्सिटी में कैसे बनाना है, साइबर रेंज बनानी है, हम उस पर बात करेंगे. सो दीज आर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं. एंड देन द की एस्पेक्ट, everything starts with कि आपके पास provable skills हैं कि नहीं है. So what you see here are currently live opportunities that are available on the website for the academia. For example, we are looking for certification leads in आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब हर प्रोडक्ट के अंदर ना रोल होता है. एक रोल होता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, जो कि उस सोल्यूशन को बनाता है, डेवलपर का जो कि उस आर्किटेक्चर को सामने रखते हुए डेवलप करता है. देन देयर इज समबडी जो कि उसको डिप्लॉय करता है, फिर एक बंदा उसको एडमिनिस्टर करता है. इंडस्ट्री में इन रोल्स के लिए, जैसे मैं पहले बता रहा था, देयर इज सर्टेन लर्निंग दैट यू हैव टू गो थ्रू. आप अगर इसमें से किसी भी रोल के अंदर इंटरेस्टेड हैं, दीज वंस आर फॉर IBM's क्लाउड पैक फॉर डेटा. सो ये हमने पिछले मंथ IBM पे फोकस किया था. गोइंग फॉरवर्ड विल बी शेयरिंग अदर्स. Interested in becoming an architect for IBM Cloud Pak for Data, तो यहाँ पे आप learning path पे click करेंगे. They have this whole sequence of learning material available out there on the website, जिसको use करके अभी आप देख रहे हैं IBM Cloud Pak for Data Solution Architect का learning material मौजूद है. आप यहाँ पे जाएं, इसको explore करें, इसको study करें. ये मैं आपको दिखाता हूँ. ये आप देख रहे हैं, ये pipeline. मतलब पहले आपने एसेंशियल टेक्नोलॉजी सीखनी है, फिर फाउंडेशनल स्किल सीखनी है, फिर आपने डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है. दिस विल लीड यू टू दिस सर्टिफिकेशन. अनलेस आप इस पैथ से गुजरेंगे तो आप सर्टिफिकेशन नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको आता नहीं होगा. तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट पे जाके इन अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकते हैं. Become a certification lead. These are as available positions as a student or faculty in your university. आप इन positions पे अप्लाई कर सकते हैं. These are paid opportunities. We will be paying people who help us generate those certifications within their universities and other universities. So for example, अगर आप इसमें interested हैं तो will pay you. No, एक चीज जो यहाँ पे मैं highlight करूंगा कि ये एक leadership role है. This is not just कि somebody is getting a certification. There's a different track जिसके लिए register for certification का बटन आप देख रहे हैं. इस role में somebody in the faculty and student can take ownership of this product. वो उसमें खुद सर्टिफिकेशन करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी एक्सपेक्ट देम टू शेफर्ड अराउंड सॉर्ट ऑफ बाकी स्टूडेंट्स और फैकल्टी को इकट्ठा करना है और उनको भी सर्टिफिकेशंस करवानी है. फॉर ईच सर्टिफिकेशन जो आप करवाएंगे, यू हैव द इंसेंटिव ऑफ 5,000 पर स्टूडेंट, एंड फॉर योर ओन सर्टिफिकेशन यू विल गेट ₹10,000.
तो इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, लीडरशिप एस्पेक्ट है और एक SME एस्पेक्ट है। बिकॉज जब आप ये सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास जो कस्टमर प्रॉब्लम आएगा वो फिर हम मिस्टर अली, मिस्टर अमजद जो भी इसको करेंगे, हम अमजद साहब के पास जा रहे होंगे कि अमजद साहब आप चूंकि इसके SME है तो आप हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू आर अवेलेबल तो you can end up making money out of it. But unless you know this stuff, तो there's really no point कि हम वो customers के projects open करें. तो these are opportunities available. इसमें AI के अंदर these are 6 opportunities. Similarly अगर आप cloud पे जाएंगे, there cloud के अंदर learning opportunities available हैं different roles के लिए. अगर आप IoT में जाएंगे, IoT के अंदर opportunities available हैं. IoT में there is so much opportunity. We have these Watson IoT platform, Watson Maximo, Watson Trinity. अब ये जो Maximo है ना, ये मेजरमेंट के लिए यूज होता है। आप इमेजिन करें IBM को इनकी इतनी जरूरत है कि जो ऑयल फील्ड्स में कंपनीज होती हैं, पावर कंपनीज होती हैं, उनके एसेट्स ना ज्योग्राफिकली स्प्रेड होते हैं, दे डोंट नो, दे वांट टू मैनेज देयर प्लांट्स, तो उनको ये मैक्सिमम की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो देयर इज अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप सर्टिफिकेशन करें एंड आपको सऊदी अरब की किसी सऊदी अरामको से कॉल आ जाए कि यार आप मेरे पास आ जाए, बिलीव यू मी। Similarly, in cyber security, we also have opportunities. अच्छा, ये आप करेंगे कैसे? आप जब ये चूज कर लेंगे पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन पे आपने अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना होगा, which is self explanatory. आजकल in the COVID world, we are pretty much used to it. अकाउंट बनने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुलेगा. Once you submit that form, वो हमारे पास आ जाएगा and then we'll reach out to you. So एक ही opportunities है. फिर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, फॉर एग्जांपल कोर्स डेवलपमेंट। आजकल साइबर सिक्योरिटी पहले डिफेंसिव होती थी, आजकल साइबर सिक्योरिटी में यू हैव टू बी ऑफेंसिव। देयर इज द कांसेप्ट ऑफ ब्लू टीम्स एंड रेड टीम्स, जहां पे आप you go on the offense and you try to find out those threat actors in advance. तो we are planning, we are looking for course developers जो कि हमें इन चीजों में कोर्स डेवलप करके देंगे. It could be a faculty, it could be an accomplished student. तो you can click on these and you can find out basic जो कोर्स की outlines है वो हमने यहाँ पे डाली हुई है. तो once we develop these courses, we'll be sharing these with the universities जहाँ पे जाके we can have these, वो साइबर सिक्योरिटी में कैप्चर द फ्लैग इवेंट्स होते हैं, where a team attacks the system and there's a team that is defending it, ताकि आप sort of the zero day vulnerability, ताकि आप थ्रेट के मटेरियलाइज होने का वेट ना करें, पहले से साइबर सिक्योरिटी मैनेज कर लें. तो these are some of the things. उसके अलावा there is one more thing जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. आई थिंक आज हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया. दिस इज आवर बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो anybody who comes on board with us, we use this system to help them, to help them develop this leadership plan. इस लीडरशिप प्लान में पहले आपके साथ बैठ के वी डॉक्यूमेंट व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव. आप ये देख रहे हैं, अगर आपने पार्टनर लीडरशिप लेनी, जो मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री लीडरशिप लेनी, ये एक सैम्पल प्लान है फॉर एन एकेडमिक आउटरीच का की रिसोर्स के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है तो वी वर्क विद यू टू फर्स्ट डिफाइन कि आप करना क्या चाह रहे हैं. देन वी प्रिपेयर यू, प्रिपेयरिंग के अंदर वी हेल्प यू मेक द बिजनेस प्लान्स. फिर उसकी एग्जीक्यूशन में आइडिएशन कैसे करनी है, उसकी मार्केट वैलिडेशन कैसे करनी है, POC से प्रोटोटाइप, MVP, और फिर आपने नेक्स्ट ईयर ऑफ कस्टमर्स पे कैसे जाना है. So from an operational aspect, this is a tiny bit that I wanted to show you. Okay, there's a method to the madness here. There's a structure that we are trying to put into all of this. With this, there's one last slide जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, which is what are the immediate opportunities available after the session. You can of course always reach out to me, you can email us, but these are some of the things जो कि अभी available है जो मैंने आपको दिखाई. You can start by filling out the affiliate forms. You can join one of the 6 sessions. We have these special interest group sessions. हर हफ्ते जुमेरात को आफ्टरनून में, रमजान में 3 बजे करीब होंगे. आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. दे आर फ्री बाय द वे. आप सर्टिफिकेशन लीड पे अप्लाई कर सकते हैं. There are more than 20 opportunities available. There are projects available. जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एग्जांपल शेयर करूं तो नमल यूनिवर्सिटी में राइट नाउ वहां पे जो डेटा साइंस की लीड हैं, they are helping us in one of the projects, and there are numerous other projects that are in the pipeline. Agar if you're interested in talking to us directly, you're more than welcome. We have these collaboration sessions, which means this sort of will give you an opportunity to have a one-on-one session with us. So if you're interested, please send us an email at spinlab@spsnet.com. इस सेशन में you can share with us कि आपके ज़हन में क्या आइडियाज़ हैं, आप किस तरह काम करना चाह रहे हैं. And with this, I will stop. I hope this was a useful session.
थोड़ा सा मैंने rush किया है because in the interest of time. We can of course talk to you after this session as well. Over to you, Dr. Hassan. Thank you very much. Any questions, please raise your hand. Or the people, those are joining online, they can turn on their mic and ask the question. Okay, thank you very much, Dr. Ashad and Hashim Barak. That was very useful session all for us. And I hope we will find some new students and faculty members from this session to join the Spin Lab programs. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Ashad. Thank you. Thank you. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.